Hello guys, welcome back to my channel Gravity Tech. This is the next video on C programming series. This course will help you to learn C language from scratch even if you do not have any programming background. In previous videos, we have already covered the topics like C language history, C comparison with the human language, character set, keywords, variables, constants, data types, format specifiers, input output like printf, scanf functions, operators, arithmetic operators, bitwise operators, logical operators, rational operators, assignment operators, conditionals where if condition, else if condition, nested if and nested if else conditions, switch case where we have also looked at the break statement, loops we have seen for loop, while loop, do while loop and the nested loops, continuous statement. We have also worked with the arrays, single dimension arrays, two dimension arrays, multi-dimension arrays. We have also worked on the strings, string operations and built-in functions and functions, structures and unions, right? Now in So if you want to revise or clear any of your these concepts, go to the channel and watch the respective videos. In today's video, we will cover the type def, storage classes and enum in detail. Guys, if you haven't subscribed yet, do subscribe to the channel as I will not be limiting this channel with C language only. It will also have the Python data structures with C, C++, Java, Shell, operating system and a lot of mathematics stuff too. Now let's see what are the enums storage classes in C language and how to deal with those, right? So in today's video, we will be looking at type def, enum, storage classes, and what exactly are we going to cover as a part of next session. Now what is a type def? Type def is a keyword that is used to provide existing data types with a new name. So many times during the development of a software or development of some complicated code, the programmers may have to basically alter the existing paradigms of programming language, what they are already using it, and they may have to alter the data types of programming languages, right? So type def is basically a reserved keyword that can be used for this purpose. The keyword is often used when handling the complex data structures like structure or union, and also for changing the data types of common ones like integers, strings, right? Now in this article, basically we are going to focus on the type def keywords, its uses and the basic syntax, and how about the type def struct. Okay, now इन सिंपल लैंग्वेज राइट हम क्या बोल सकते हैं कि टाइप डेफ ऐसा एक कीवर्ड है जो एग्जिस्टिंग जो डेटा टाइप का नाम होता है उसको नया नाम देने के लिए यूज करते हैं. अभी आप अगर फ्लोट देखोगे, आपने अगर दो डेसिमल नंबर्स आपको अगर स्टोर करने हैं तो आप फ्लोट डेटा टाइप यूज करोगे. लेकिन फ्लोट इज नॉट द गुड नेम, राइट, जो हम रेगुलर लैंग्वेज में यूज करते हैं. सो रेगुलर लैंग्वेज में हम लोग क्या यूज करते हैं, डेसिमल नंबर. तो आप फ्लोट को क्या कर सकते हो कि नया नाम दे सकते हो डेसिमल करके, और फिर डेसिमल करके आप पूरे आपके प्रोग्राम में यूज कर सकते हो एज अ डेटा टाइप. ओके, नाउ लेट्स सी हाउ इट इज. सो सिंटैक्स ऑफ अ टाइप डेफ का सिंटैक्स क्या है? टाइप डेफ, एग्जिस्टिंग डेटा टाइप और न्यू डेटा टाइप. अगर आपका एग्जिस्टिंग डेटा टाइप फ्लोट है तो उसको आप नया नाम दे सकते हो डेसिमल. सो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, टाइप डेफ, फ्लोट एंड डेसिमल. नाउ here are the some examples. यहाँ पे मैंने दो तीन एग्जांपल्स दिए हुए जो आपको बताएंगे. सी नाउ टाइप डेफ मतलब क्या, नया नाम दो. नया नाम किसे दो? अनसाइंड कैरेक्टर को. अनसाइंड कैरेक्टर को नया नाम दे दो क्या, बाइट. तो जहां जहां पे आप अनसाइंड कैर यूज करोगे वहां पे हम अभी क्या यूज करेंगे, बाइट यूज करेंगे. नेक्स्ट लाइन क्या कहती है, टाइप डेफ इंट स्टार, दैट इज इंट अंडरस्कोर पीटीआर. सो इंट स्टार हम जहां पे भी यूज करने वाले पॉइंटर, इंटीजर पॉइंटर, वहां पे आप डायरेक्टली आई एन टी अंडरस्कोर पीटीआर अगर आपने लिख दिया तो दैट विल बेसिकली बी न्यू नेम टू इंट स्टार, राइट. टाइप डेफ स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, राइट. अभी हम जब भी अगर स्ट्रक्ट टाइप डेटा टाइप यूज करते हैं तो हर बार हम वहां पे स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करते हैं. तो हमको स्ट्रक्ट कीवर्ड और उसका डेटा टाइप, ये दोनों के दोनों हमको यूज करने पड़ते हैं. तो दोनों के दोनों जगह पे अगर आप सिंगल सा नाम लिख दोगे एम्प्लॉय, तो दैट विल बी मच इजियर टू रीड एंड यूज इट, राइट. सो इस तरीके से टाइप डेफ के कुछ एग्जाम. सो अभी हम प्रैक्टिकल एक्सरसाइज में टाइप डेफ के कुछ स्पेसिफिक use cases देखेंगे, right? How to deal with the type def with the primary data types, type def with structures and unions, type def with the pointers, type def with the arrays, right? Now let's go to the IDE and see how exactly those are. See,
सो दिस इज अ स्मॉल प्रोग्राम आई हैव रोट, एक छोटा सा प्रोग्राम ने लिखा है जो आपको डेमोन्स्ट्रेट करेगा कि टाइप डेफ क्या होता है। ये तो ऑलरेडी मैंने आपको लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि व्हाट इज टाइप डेफ। अभी लेट्स स्टार्ट विद द टाइप डेफ विद द प्राइमरी डेटा टाइप्स, राइट। अभी हम क्या करते हैं कि लेट्स से दिस इज हाउ इट इज। तो यहाँ पे फ्लोट को मैंने नया नाम दे दिया डेसिमल। इसका मतलब क्या हो गया कि टाइप डेफ मतलब नया नाम किसको, फ्लोट को, राइट, क्या, डेसिमल। तो जहां पे भी मैं अगर यहाँ पे अभी लिखूंगा फ्लोट, फ्लोट x इज इक्वल टू 5.67, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, डेसिमल x, राइट, 56.7, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ, करेक्ट। सो दिस इज व्हाट यू कैन बेसिकली अचीव द टाइप डेफ। एग्जिस्टिंग डेटा टाइप को आप नया नाम दे सकते हो। अगर मैंने अभी, अगर मुझे x को प्रिंट करना है, x क्या है बेसिकली, डेसिमल, डेसिमल मतलब क्या, फ्लोट, तो मैं परसेंट f से उसको प्रिंट कर सकता हूँ। लेट मी जस्ट मे बी ट्राई टू रन इट। इफ आई रन दिस, how it will be, right? See, float value is what, 56.70000। now ये तो हो गया प्राइमरी डेटा टाइप। जैसे हम फ्लोट को हमने रीनेम किया, हम इंटीजर को भी कर सकते हैं और बाकी के इसको भी कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी द टाइप डेफ विथ स्ट्रक्ट और यूनियन। अगर आपको आपने स्ट्रक्चर या यूनियन आपने डिक्लेयर किया है तो उसके साथ आप किस तरह से डील कर सकते हो। अभी देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, एक स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफाइन कर दिया। कौन सा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट करके। नाउ ये जो स्ट्रक्चर है डेटा टाइप है, उसमें स्टूडेंट का नाम रहेगा, रोल नंबर रहेगा और एड्रेस रहेगा। लेकिन मैं जब भी अगर मुझे इस टाइप का डेटा, ये कोई वेरिएबल अगर डिक्लेयर करना है, तो मुझे इस टाइप का पूरा ऐसे लिखना पड़ेगा, राइट। स्ट्रक्ट स्टूडेंट एंड देन स्टूडेंट करके, राइट। नाउ मैं क्या करूंगा, राइट, आई आई विल बेसिकली चेंज दिस स्ट्रक्ट स्टूडेंट को टू द स्टूडेंट, ओके। सो नाउ यहाँ पे हमने क्या किया, सो व्हेनेवर आपको जब भी अगर आपको स्टूडेंट नाम का कोई अगर वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो आपको डायरेक्टली स्टूडेंट लिखना है, आपको स्ट्रक्ट स्टूडेंट लिखने की, स्ट्रक्ट स्टूडेंट स्टूडेंट लिखने की जरूरत नहीं है। अभी देखिए अगर आपको कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना होता था इसी को, राइट, आप किस तरह से लिखते थे, st1 इज लाइक दिस, करेक्ट, लाइक दिस, इज इट। नाउ अगर आपको और एक स्टूडेंट को डिक्लेयर करना होता था, राइट, व्हाट वुड यू हैव रोट, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, राइट। तो आप हर बार जब भी स्टूडेंट टाइप का कोई वेरिएबल अगर डिक्लेयर कर रहे हो, यू आर राइटिंग द स्ट्रक्ट कीवर्ड एवरी टाइम, राइट। और अगर आपका गलती से अगर कभी भी स्ट्रक्ट कीवर्ड रह गया, सो इट विल बेसिकली जस्ट लीड टू द फेल्यूर। तो इसी के लिए, राइट, व्हाट वी शुड बेसिकली डू, वी शुड ट्राई टू गिव अ न्यू नेम टू अ existing data type, okay। so here it is, right, let's say now what I've done, struct student को मैंने नया नाम दिया स्टूडेंट। देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये कैपिटल है, ओके, ये क्या है, कैपिटल। दैट्स वाई स्टूडेंट नाम का, स्टूडेंट टाइप का एक st1 करके एक वेरिएबल है। नाउ उस वेरिएबल में उसके अंदर जो नेम है उसको अथर्व, रोल नंबर 21 एंड एड्रेस व्हाट, लेट्स से पोहरे, right। now what we are going to print, right, student information is what, name, percent s, roll number, percent d, एड्रेस, परसेंट एफ। सो st1 डॉट नेम, st1 डॉट रोल नंबर, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ओनली हम क्या करते हैं, उसको रीनेम कर देते हैं, राइट। हमारे कन्वीनियंट के हिसाब से हम उसको अपने हिसाब का नाम दे देते हैं, ताकि जब भी हम अगर प्रोग्राम रीड करें या फिर एग्जीक्यूट करें, राइट, एट दैट टाइम जब भी हमको अगर रीडेबिलिटी अच्छी रहेगी, क्योंकि कंपाइलर को तो स्टूडेंट नहीं जाएगा, कंपाइलर विल हैव दिस ओनली, कंपाइलर के पास यही जाएगा, ओके। सो बेसिकली दिस इज व्हाट इट इज। अगर हम इसको रन करेंगे तो इट विल सिंपली जस्ट प्रिंट द डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, राइट। सो दैट्स हाउ यू कैन जस्ट रीनेम or type def with the structure, and similarly with the unions as well. Now how do we type def with the pointers? See now अगर आपके पास pointer है, let's say, right, now type def int is int array 2. now what exactly are we going to, are we type def, are we doing it, right? See यहाँ पे क्या है कि ये जो int है, this will be what, int array 2 करके इस तरह से मैं इसको नया डेफिनेशन दे रहा हूँ। इसका मतलब कि जब मैं इंट एरे करके डिफाइन करूंगा, तो वो एक एरे रहेगा ऑफ 2। तो जब मैंने इंट एरे मार्बल डिफाइन किया, मार्बल क्या है, इट्स एन एरे ऑफ 2 इंटीजर्स।
लेकिन जब मैं बोलूंगा मैट्रिक्स 10, व्हाट डज दैट मीन? मैट्रिक्स ऑलरेडी एक एरे है 2 इंडाइसेस का, राइट, 2 रोज का, और उसमें और 10 है। सो दिस इज व्हाट इट इज बेसिकली। ये किस तरह से रहेगा? इट विल बी इंट, ये एक्चुअली इस तरह से है, कंपाइलर को इस तरह से पता लगता है। ओके, सो मार्बल्स, दिस विल बी व्हाट 2, एंड देन दिस विल बी 210। ओके, दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। सो दिस टू आर इक्वालेंट, ये दोनों के दोनों सेम है। यहाँ पे हमको ए इंडेक्स देने की क्यों नहीं जरूरत पड़ी है? बिकॉज वी हैव एडिड हियर, राइट। दिस इज बेसिकली टाइप डेफ विद व्हाट? एरेज rather than pointers, yeah. So अगर आप अभी इसको प्रिंट करोगे, see what I'm trying to print it here, right? int I and j, दो इंटीजर्स लिए मैंने इंटरेट करने के लिए। मार्बल एरे इंटरेट करूंगा तो राइट, दो एलिमेंट प्रिंट करने मार्बल्स के, सो मार्बल्स आई। यहाँ पे कहीं पे मैंने एरे का सबस्क्रिप्ट दिया है क्या? नहीं, बट स्टिल इट इज एन एरे। ओके, सो इट विल प्रिंट 34 and 56। ओके, and let's maybe try to run it. So when I print it, right, it prints 34 and 56. Now similarly, a matrix जो है, it is a double dimension array. Already matrix 2 dimension है और ये 10 है, right? Now when you basically try to print the details, when you try to print the details like this, see what it will be. तो हमें एक्चुअली ये दो एरेस प्रिंट, दो रोज प्रिंट करने हैं फर्स्ट, राइट, एंड देन वी नीड टू बेसिकली प्रिंट द नेक्स्ट। j is equal to what? Less than 2. Why 3? 3 means there are 3 rows, 1, 2 and 3, right, and then हर एक में दो दो एलिमेंट्स है फिर से। so when you print it, it will simply print the matrix. See, 23, 34, 45, 56, 12 and 67. Okay, now this is how basically you can deal with the type def, right? Type def with primary data types, integer, float, characters. Type def with structures unions, type def with the pointers, type def with the arrays, right? Now let's look at what is enum. So the enums are used to assign names to integral constants. The names make a program easy to read and maintain. So enums क्या होते हैं कि enums मतलब आपके पास अगर कुछ इंटीग्रल कॉन्स्टेंट्स है, आपको जिस किसी को नंबरिंग देना है, जैसे आपके पास वीक डेज है, राइट, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, अगर इसको आपको नंबरिंग करनी है, राइट, तो आप नंबरिंग कैसे करोगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, या फिर आप नंबरिंग करोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये नंबरिंग करने के लिए enums यूज किए जाते हैं। अभी enums कैसे यूज करते हैं, लेट्स सी, राइट। नाउ enums इन सी इज लाइक दिस, राइट, डिक्लेरेशन, इंस्टेंशिएशन एंड ऑपरेशन, ये तीन टाइप के, इन थ्री टाइप्स और थ्री segments it is basically divided. Okay, let's now डिक्लेरेशन किस तरह से होता है? enum कीवर्ड आपको पहले लिखना है, देन enum वेरिएबल का नाम क्या रहेगा? डेज ऑफ वीक्स enum वेरिएबल, और फिर आप किस पर्टिकुलर सीक्वेंस को नंबरिंग कर रहे हो। तो अभी अगर मैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इस पूरे 7 डेज को अगर मैं नंबरिंग कर रहा हूं 0 से शुरू करके 6 तक, तो मैं क्या करूंगा? उसको क्या नाम देना है? आई वॉन्ट टू गिव अ नेम डेज ऑफ अ वीक करके, लेट्स से, राइट। तो मैंने डेज ऑफ अ वीक नाम दे दिया, फिर इन अ करली ब्रैकेट मैं वो पूरा का पूरा लिख दूंगा जिसको मुझे नंबरिंग करना है। संडे 0, मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेनसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6 हो जाता है। तो ये होता है इन्यूमरेटर्स। इन्यूमरेटर्स मतलब क्या हो? लिस्ट ऑफ कॉन्स्टेंट सेपरेटेड बाय कॉमास, राइट। सो बाय डिफॉल्ट 0 से शुरू होता है, लेकिन आपको किसी और नंबर से शुरू करना है तो आप बोल सकते हो संडे इज इक्वल टू 1, तो तभी वो 1 से शुरू हो जाएगा। इफ यू से संडे इज इक्वल टू 20, राइट, तो ये 20 से शुरू हो जाएगा, अगला नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, इस तरह से होता है। सो डिपेंड, अगर आपने यहाँ पे इनिशियलाइज किया या फिर शुरुआत का नंबर दिया, इनिशियल नंबर, राइट, एट दैट टाइम इट विल बी दैट नंबर, अदरवाइज वो बाय डिफॉल्ट क्या लेगा? 0 से शुरू हो जाएगा। तो ये हो गया, आपने इनम वेरिएबल आपने डिक्लेयर कर दिया। आपने कौन सा वेरिएबल डिक्लेयर किया? डेज ऑफ द वीक करके एक आपने इनम वेरिएबल डिक्लेयर किया, जिसकी क्या वैल्यूज हो सकते हैं? संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हो सकता है। इसके अलावा अगर आप कोई और वैल्यू वहां पे इनिशियलाइज करने की कोशिश करोगे तो वो वैल्यू लेगा नहीं, राइट। नाउ इंस्टेंशिएशन अभी आप डिफाइन कैसे करोगे? तो इनम
डेज ऑफ वीक कौन सा वेरिएबल है, ये राइट, और डे। नाउ दिस इज वेरिएबल नेम, राइट। इस वेरिएबल के अंदर आप एक्चुअल वैल्यू रखोगे, ऑब्जेक्ट ऑफ इनम डेज ऑफ वीक। तो भी ऑपरेशन आप किस तरह से लोगे, अगर आपको ये डे वेनसडे को इनिशियलाइज करना है, राइट, सो डे इज इक्वल टू व्हाट, वेनसडे, सो डे इज इक्वल टू वेनसडे, सो डे इज 2। तो यहाँ पे वेनसडे क्या है, यहाँ पे मतलब 0 1 2 3, इट इज बेसिकली 3, 2 नहीं आएगा, ये क्या आएगा 3। ओके, सो वेनसडे का जो वैल्यू है वो 3 रहेगा। सो दिस इज हाउ यू कैन बेसिकली यूज enums, राइट। नाउ लेट्स सी इन id, राइट, व्हाट वी हैव ऑन enum फ्रंट, राइट। अगर आप यहाँ पे enum देखोगे, सेम मैंने वैल्यू लिया हुआ है। डेज ऑफ द वीक क्या है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। मैंने एक डेज ऑफ द वीक का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया टुडे, और टुडे में क्या इनिशियलाइज कर दिया, सैटरडे। सो सैटरडे में भी क्या आना चाहिए, 6, बिकॉज ये चालू हो रहा है जीरो से। नाउ लेट्स सी, अगर मैंने ये जीरो से चालू हो रहा है तो सैटरडे में देखो टुडे इज व्हाट 6। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे संडे इनिशियलाइज कर दिया 56 को, तो अभी सैटरडे में क्या आना चाहिए, इट इज जस्ट 6 प्लस सी 62 आया, बिकॉज यहाँ से 56 शुरू हो गया, तो आगे वो उस तरह से लेगा। लेकिन आपको यहाँ से शुरू नहीं करना है, अगर आपको ट्यूसडे को 56 से शुरू करना है, तो यहाँ पे संडे मंडे क्या रहेगा 0 1, लेकिन ये 56 7 58 59 एंड 60। तो अभी जो वेरिएबल का वैल्यू रहेगा दैट इज 60। अगर आपने यहाँ पे सैटरडे की जगह पे संडे लिया, राइट, तो संडे को क्या, दैट विल बी 0, व्हाई, बिकॉज इट स्टार्ट्स विथ 0। इजी। सो दिस इज हाउ यू बेसिकली यूज द इनम। लेकिन मैंने यहाँ पे संडे ना यूज करके, राइट, लेट्स से ऐसे कुछ अलग से अगर यूज किया, राइट, सन 1, राइट, लेकिन सन 1 डेज ऑफ द वीक मतलब क्या, ये इनम टाइप का है, इसकी यही वैल्यूज हो सकती है। अभी मैं इस टाइप के वेरिएबल को ऐसा वैल्यू दे रहा हूँ, दैट वैल्यू इज नॉट, यहाँ पे है ही नहीं, उसको वो डिफाइन ही नहीं है, असाइन ही नहीं किया गया। तो अभी वो क्या करेगा, सी, उसने एक एरर दे दी, व्हाट इट सिंग, सन 1 वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। तो इसीलिए इनम ओनली अलाउ करता है कि जो वैल्यूज आप यहाँ पे रखोगे। ओके, तो आप अभी मंथ के जो डेज होते हैं उनको भी नाम दे सकते हो, करेक्ट, फोर्थ संडे, थर्ड संडे, ऐसे करके। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन यूज द enums। ओके, नाउ लेट्स लुक एट what is the next. The next is basically a storage classes. Now what are the storage classes in C? Now see, हर एक जो स्टोरेज टाइप रहता है, राइट, आप जब भी कोई वेरिएबल अगर डिक्लेयर करते हो तो वेरिएबल वो किसी क्लास के, अभी आप अगर मे बी लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ह्यूमन बीइंग। आप अगर एक ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लो, राइट, वो अपने क्लास के हिसाब से आप उसका घर रहता है, बहुत आलीशान घर, मीडियम क्लास घर, राइट, कोई झोपड़ी में रहेगा। तो वो डिपेंड करता है कि स्टोरेज, राइट, सो वो उसको वहां पे रखने के लिए बनाया गया है, राइट। इसी तरीके से जो वेरिएबल्स होते हैं ना, मतलब यहाँ पे वेरिएबल्स उस तरह से नहीं होते लग्जरी वगैरह टाइप, ओके, बट वेरिएबल्स का स्टोरेज भी उसी तरीके से कुछ डिफाइन होता है। तो वेरिएबल किस टाइप के स्टोरेज में रहता है, वो कैटेगरीज किए जाते हैं 4 टाइप्स में, ऑटो, एक्सटर्न, स्टैटिक और रजिस्टर, राइट। तो वो हर एक का जो स्टोरेज स्पेसिफायर है वो उसके हिसाब से स्टोरेज में एक प्रकार के स्टोरेज में अलोकेट कर देता है। अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया और अगर उसका स्टोरेज स्पेसिफायर आपने ऑटो लिखा, तो कहाँ चला जाएगा, स्टैक में चला जाएगा। स्टैक में चला जाएगा, उसकी जो इनिशियल वैल्यू रहेगी क्या रहेगी, गार्बेज रहेगी। और उसका स्कोप क्या रहता है उस वेरिएबल का, विद इन दैट ब्लॉक जहां पे आपने उसको डिफाइन किया है वही पे रहेगा। और लाइफ क्या रहती है, जैसे ही ब्लॉक खत्म हो गया उस वेरिएबल का लाइफ खत्म। इसे बोलते हैं ऑटो स्टोरेज स्पेसिफायर वेरिएबल। अगर आपने कोई भी वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया तो उसका बाय डिफॉल्ट स्टोरेज स्पेसिफायर क्या रहता है, ऑटो। लेकिन आपने अगर नहीं भी किया है, राइट, सो बाय डिफॉल्ट अगर आपने कोई भी अगर स्टोरेज स्पेसिफायर दिया नहीं है तो उसका स्टोरेज स्पेसिफायर रहेगा ऑटो, ध्यान में रखना। नाउ नेक्स्ट स्टोरेज स्पेसिफायर है एक्सटर्न। एक्सटर्न स्टोरेज स्पेसिफायर आपने जहां पे भी लिखा वो उस टाइप का वेरिएबल जाता है डेटा सेगमेंट में। ऑटो नाम का वेरिएबल जाता है स्टैक में, एक्सटर्न डेटा टाइप का स्टोरेज टाइप का वेरिएबल जाता है डेटा सेगमेंट में। स्टैटिक जो स्टोरेज स्पेसिफायर है उसका भी वेरिएबल जाता है डेटा सेगमेंट में, वेराज रजिस्टर टाइप का जो रहता है वो सीपीयू रजिस्टर में जाता है। इस तरह से स्टोरेज स्पेसिफायर के हिसाब से वेरिएबल्स कहाँ पे स्टोरेज हो रहे हैं, राइट, सिस्टम में, वो डिफाइन होता है। और उसकी हर एक की इनिशियल वैल्यू अलग रहती है। ऑटो का इनिशियल वैल्यू रहता है गार्बेज, एक्सटर्न का रहता है 0, स्टैटिक का भी रहता है 0,
रजिस्टर का भी रहता है गार्बेज। हर एक स्टोरेज स्पेसिफाइड टाइप का वेरिएबल जो रहता है उसका स्कोप भी अलग अलग होता है। ऑटो टाइप का रहता है विद इन ब्लॉक, एक्सटर्न का रहता है मल्टीपल फाइल्स। लेट्स से आपके पास ए डॉट सी करके एक फाइल है, बी डॉट सी करके एक फाइल है। ए डॉट सी के अंदर आपने एक जेड नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर यूज किया है, और उस जेड वेरिएबल को आपको बी डॉट सी अलग फाइल में यूज करना है। तो तब आप कौन सा स्पेसिफायर यूज करोगे? एक्सटर्न। सो दैट इज व्हाट ग्लोबल मतलब मल्टीपल फाइल्स में। स्टैटिक क्या होता है? विद इन ब्लॉक रहता है, लेकिन इसका जो लाइफ है जब तक प्रोग्राम खत्म नहीं हो जाता तब तक रहता है। देखो, जो ऑटो वाले का लाइफ होता है वो खाली जब जैसे ही ब्लॉक शुरू हुआ ब्लॉक खत्म, उसका लाइफ खत्म, प्रोग्राम खत्म होना हो उसका कुछ लेना देना है नहीं। लेकिन एक्सटर्न और स्टैटिक का क्या होता है कि वो जब तक प्रोग्राम खत्म नहीं हो जाता है तब तक उस वेरिएबल का लाइफ बना रहता है, वो जिंदा रहता है, राइट। सो स्टैटिक जो रहता है, स्टैटिक स्टोरेज स्पेसिफायर वाले जो रहते हैं विद इन ब्लॉक रहता है स्कोप, लेकिन दे लॉस्ट लाइक अप टिल एंड ऑफ द प्रोग्राम। रजिस्टर टाइप जो होता है वो विद इन ब्लॉक ही होता है, एंड एंड ऑफ द ब्लॉक उसका लाइफ खत्म हो जाता है। लेकिन रजिस्टर टाइप वेरिएबल, अभी ये स्टोरेज स्पेसिफायर बहुत पर्टिकुलर जगह पे यूज होता है जहां पे बहुत क्विकली आपको एक्सेस करना होता है। इस टाइप के डेटा के लिए ये वाला रजिस्टर स्टोरेज स्पेसिफायर क्या होता है, यूज होता है। नाउ लेट्स सी द प्रोग्राम में भी, राइट, विल सी एक्चुअल प्रोग्राम। अभी देखिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है। ओके, व्हाट आई हैव डन, लेट्स लुक एट वन बाय वन स्टोरेज क्लासेस। सो पहला स्टोरेज क्लासेस है ऑटो। देखिए अभी ऑटो स्टोरेज क्लासेस में और इसमें कुछ फर्क पैसे पड़ता है नहीं। ओके, वेरिएबल का वैल्यू वगैरह सब सेम रहता है, एड्रेस वगैरह भी सेम टाइप का ही रहेगा। आप यहाँ पे ऑटो नहीं भी लिखोगे, ऐसे लिखोगे तो भी ये जो है वेरिएबल इसका स्टोरेज टाइप क्या हो गया? ऑटो हो गया। ओके, अगर आपने उसका एक्सप्लिसिटली आप उसको स्टोरेज टाइप दे भी सकते हो, राइट, इस तरह से। तो आप अगर स्टोरेज टाइप उसका स्टोरेज क्लास के अंदर का वेरिएबल का वैल्यू पुट करो, प्रिंट करोगे तो क्या प्रिंट करेगा? 30, right? Let's maybe try to print it. When you basically try to print it, right, it will give you auto storage class variable is equal to what? 30. Similarly, you can just maybe simply have a register class as well, right? अभी मैंने नेक्स्ट जो लिया है रजिस्टर क्लास, आपको डिफरेंस इसमें कुछ दिखाई नहीं देगा, और राइट, लेकिन ये इंटरनली ए कहाँ पे स्टोर हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो इंटरनली ए स्टोर हो रहा है प्रोग्राम के स्टैक में जा रहा है, यहाँ पे जो ए स्टोर हो रहा है वो सीपीयू रजिस्टर्स में जा रहा है। ओके, सो रजिस्टर स्टोरेज क्लास विल बी व्हाट? Now again it will print the 30 only, right? You won't see any differences there. Now let's see the static one, right? How the static one looks like. Now static basically looks like this. Let's say कि हमारे पास एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्या है कि हम मेरे पास स्क्वायर के सीक्वेंस है, वन का स्क्वायर, वन वन का स्क्वायर के बाद मैंने टू का स्क्वायर लिया है, फोर, थ्री का स्क्वायर, फोर का स्क्वायर, फाइव का स्क्वायर, सिक्स का स्क्वायर, राइट। इस तरीके से मेरे पास एक से लेके 10 तक के स्क्वायर का एक सीक्वेंस है। 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 एंड 100। अभी मुझे इन सब का पूरा एडिशन निकालना है। ये पूरे जो टर्म्स है 1 से लेके 10 के जो स्क्वायर्स है उन सब का एडिशन निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने एक फंक्शन लिखा ऐड नंबर्स करके, और उसमें मैं हर एक वेरिएबल यहाँ से भेज रहा हूँ। सीक्वेंस आई, पहले 1 भेजूंगा, बाद में 4 भेजूंगा, बाद में 9 भेजूंगा, उस फंक्शन को 16, 25 करके एक 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 एक, एक वैल्यू में भेजूंगा। और ये फंक्शन मैंने कुछ इस तरीके से डिफाइन किया यहाँ पे, सी। तो मैंने इस फंक्शन में उस वैल्यू को ले लिया जो यहाँ से वो जो एक स्क्वायर में भेज रहा हूँ। फिर मैंने एक सम करके वेरिएबल उसको इनिशियलाइज कर दिया 0 से। मैं पूरे सब लोगों का जो एडिशन है, सभी टर्म्स का एडिशन सम में रखने वाला हूँ। तो सम इज इक्वल टू सम प्लस नेक्स्ट नंबर, करेक्ट। सो जब भी मैंने यहाँ पे अगर वन या वन भेजा, राइट, सो यहाँ पे सम में क्या आ जाएगा? 1 आ जाना चाहिए। जब मैं 4 भेजूंगा सो 1 + 5 हो जाना चाहिए, उस तरीके से। सो जब मैं लास्ट में अगर अगर हम यहाँ पे देखें, वो इस तरीके से करना चाहता हूँ मैं। पहले सम 0 था, 0 + 1 1 हो गया, फिर 1 + 4 5 हो गया, 5 + 9 14, 14 + 16 30, इस तरीके से, राइट। तो अगर मैं इसको भी रन करता हूँ, सी व्हाट विल हैपन, इट हैज प्रिंटेड द ओनली द नंबर्स, राइट। उसने कुछ कंप्लीट करेक्ट सम प्रिंट नहीं किया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्टैटिक यूज कर लेता हूँ तो इसका मतलब क्या होता है? अभी जब मैंने स्टैटिक यूज नहीं किया था, क्या हो रहा था? हर बार जब ये फंक्शन कॉल हो रहा था, हर बार जब ये फंक्शन कॉल हो रहा था तो ये सम वेरिएबल जो है हर बार नया बन रहा था, राइट। तो हर बार नया बनने से क्या हो रहा था? तो पहले वाला जो सम था वो डिस्कार्ड होके चला जा रहा था। इसका
स्टोरेज टाइप था ऑटो। ऑटो होने की वजह से जब भी ये ब्लॉक शुरू हुआ, ब्लॉक एंड होने के बाद इसका लाइफ खत्म हो जाता था। लेकिन यहाँ पे अगर हम स्टैटिक करके अगर लिख देते हैं, तो हमको पता है स्टैटिक का लाइफ टाइम क्या रहता है, पूरा प्रोग्राम खत्म होने तक रहता है। तो ये एक ही बार इनिशियलाइज करेगा और हर बार सम क्या होगा, अपडेट होगा। तो जब हम इसको भी रन करेंगे, सी, सो फाइनली पूरे 1 से 10 तक के नंबर्स का स्क्वायर की एडिशन क्या आ गई, 385। इजी। सो दैट्स हाउ स्टैटिक कीवर्ड्स और स्टैटिक स्टोरेज स्पेसिफायर्स आर used for. Okay, now, so this was all about the storage classes. Now, this is what basically I had it from this video. So इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया, टाइप डेफ, enum एंड द स्टोरेज क्लासेस। अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे प्री प्रोसेसर्स, और उसके बाद कवर होगा फाइल ऑपरेशंस, और वो दोनों होने के बाद अपना सी लैंग्वेज का पूरा कोर्स खत्म होता है। सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स एज वेल, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट आपको नए नए जो टेक्नोलॉजीज है उसके रिलेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन आते रहे, राइट? सो I'll see you the next video. Thank you. Please do not forget to like, subscribe, and share. I wish you happy learning with the Gravity Deck. Thank you.